Good morning dear students and welcome to Genesis. Well, this lecture of mine is in continuation to my lectures on the chapter life processes. हमारे last video में हमने already transportation start किया था where we understood the structure of heart. आज हम लोग समझने वाले हैं blood pressure. Well, blood pressure is basically the pressure exerted by the blood on the wall of the vessel which is carrying it. जब हम vessel की बात करते हैं we already know that there are three kinds of blood vessels. There is artery, there is vein, there is capillaries. Then कौन से vessel की बात करते हैं जब हम blood pressure समझते हैं? We only talk about artery. So the force that the blood exerts against the wall of a vessel मतलब artery है यहाँ. That is called blood pressure. Now blood pressure के दो भाग हैं. The first part is called ventricular contraction and the second one is called ventricular dilation. So याद रखना जब हम blood pressure पढ़ते हैं तो हम सिर्फ arteries की बात करते हैं and second ये जो pressure exert होता है ये कौन से chamber of heart से exert होता है? हमेशा ventricle से, उसी को हम count करते हैं blood pressure में. So when the ventricles are contracting उसे हम कहते हैं systolic pressure. So यहाँ होता क्या है? Ventricular contraction. So because of ventricular contraction, the pressure that is exerted by the blood on the artery is known as systolic pressure. Numerically systolic pressure एक normal इंसान में होना चाहिए 120 mm of Hg. This can go up, this can also go down depending upon the medical condition of the patient. और एक प्रेशर है डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर को काउंट किया जाता है जब वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, दैट मीन्स दे आर डायलेटेड. सो दिस इज वेंट्रिक्यूलर डायलेशन. As a result of which तब जो प्रेशर जनरेट होता है by the blood on the wall of the artery उसे हम diastolic pressure कहते हैं. क्योंकि diastole condition में the pressure exerted will be less in comparison to systolic condition, तो numerically ये हमेशा इससे कम रहेगा. So the diastolic pressure of a normal individual is 80 mm of Hg. ये आपको हेल्प भी करेगा याद रखने में. Systole means ventricles are contracting and diastole means when the ventricles are relaxing. और हमेशा याद रखना जब भी हम ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे we are going to talk about the pressure exerted by blood on the wall of the arteries and इसकी जो measurement होती है it is only on the basis of ventricular contraction and ventricular dilation. Before we go further, जब हम एक structure of human heart देखते हैं we very clearly see that the wall of the ventricle is thicker in comparison to the wall of the auricles or the atria. इसका एक reason है. See, the blood from the upper chamber are pushed only to the next chambers, that is to the ventricle. लेकिन जब ventricles को contract करना पड़ता है तो वो blood flow out करते हैं either through aorta to the entire body or through pulmonary artery to the lungs. इन दोनों situations में उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है in comparison to the upper two chambers. And this is the reason why the wall of the ventricle is thicker in comparison to the wall of the atria. And this is the reason why जब blood ventricle से निकलता है it is always under very high pressure. और उसी को हम लोग blood pressure कहते हैं. I have a question here कि अगर इस कारण से ventricles have thick wall तो इन दोनों ventricles में we know that the left side or the left ventricle it pushes the blood through the aorta और यहाँ से blood पूरे body में जाता है. On the other hand, the right side of the ventricle उसका काम है to push the blood only to the pulmonary artery because वहाँ से ये blood जाएगा to the lungs for purification. Now my question is जब हम इन दोनों को compare करते हैं कौन सा should be more thicker? इसका आंसर ये है the left side of the ventricle, that means the left ventricle, the wall of the left ventricle will be little more thicker compared to the wall of the right ventricle. इसका reason क्या है? Because the left ventricle pushes the blood through aorta to entire body, whereas the right ventricle only pushes the blood to the pulmonary artery, जहाँ से ये blood lungs तक जाता है. So we understood what is blood pressure. We understood why the ventricular muscles are thick because हमने अभी सिस्टोल और डायस्टोल भी समझा. The last thing is which is that instrument that is used for measuring blood pressure. Blood pressure measure करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं. So please remember this name.
इसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है, दैट मीन्स इफ इट इज अबव 120/80 mm of Hg, देन उस पेशेंट को हाइपरटेंसिव कहा जाएगा। दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट पेशेंट। ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सिंस द ब्लड विच फ्लोज थ्रू द आर्टरीज दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल, और उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर इस आर्टरी में कोई भी हिंड्रेंस है जो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर रहा है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा कब हो सकता है? अगर किसी पेशेंट के डाइट में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है और हाई फैट डाइट है, देन वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है अलोंग द वॉल ऑफ द आर्टरीज एंड दे कॉज हिंड्रेंस टू द ब्लड फ्लो, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। Now let us discuss the three different kinds of blood vessels. हमें already पता है there are three different types. There is artery, vein and capillaries. तो structurally अगर देखा जाए तो artery काफी thick walled है, ऐसा thick wall, muscular wall होता है, as a result of which इनका जो lumen है जिसके through blood flow करेगा, that is quite narrow. What is the function of the artery? It carries oxygenated blood. लेकिन सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां तक? सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, या हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो आर्टरी का थिक वॉल्ड होना इसी से जस्टिफाइड होता है, क्योंकि हार्ट से जब ब्लड निकलता है इट इज अंडर वेरी हाई प्रेशर। उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड दे हैव नैरो ल्यूमेन। नेक्स्ट वेन्स आर थिन वॉल्ड, दे हैव वाइड ल्यूमेन, प्लस इनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कहा जाता है वैल्व्स। व्हाट आर वैल्व्स? आई विल एक्सप्लेन, बट पहले समझते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। सो दे एक्चुअली कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड, लेकिन कहां से कहां तक? या तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स हार्ट या बोलेंगे फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। सो ऑब्वियसली जो ब्लड यहां फ्लो होता है, सिंस इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, इसमें उतना प्रेशर नहीं होता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे कैन अफोर्ड टू बी थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड होने के कारण इनका ल्यूमेन भी वाइड है, लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है वैल्व्स। सो इफ दिस इज वेन, तो इनके अंदर कुछ पॉकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं वैल्व्स। लेकिन इनकी जरूरत क्यों है? See, the valves, they actually allow the upward flow of blood but never allows back flow. So valves का function ही है to prevent back flow of blood. कहाँ? Within the veins. और ये क्यों होता है? बिकॉज इफ यू लुक एट योर बॉडी, देन जो ब्लड आपके फुट से हार्ट तक कैरी किया जाता है थ्रू द वेन्स, सो दिस ब्लड एक्चुअली फ्लोज अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो इट विल हैव ऑल चांसेस ऑफ फ्लोइंग बैकवर्ड्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे रोका जाता है बाय द वेल्व्स। दीज वेल्व्स क्लोज एज सून एज द ब्लड फ्लोज अपवर्ड्स, ये वेल्व क्लोज करके रखते हैं सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ बैक फ्लो। जब भी बैक फ्लो के चांसेस होंगे, दे विल सिंपली क्लोज एंड प्रिवेंट backflow. That is why arteries में हमें valves नहीं मिलते, because arteries में इतने long distance against gravity कोई traveling नहीं होती है blood की. But in your veins, since the blood flows against gravity from the foot to the heart, इसीलिए इनके पास present है valves. The third category है capillaries. ये इन दोनों से कहीं ज्यादा thin है. ये क्यों? Because they do not have any muscular wall. They are amuscular, without any muscular wall. They are very thin and they are the ultimate site of exchange. मतलब when we talk about any organ, किसी भी organ के अंदर एक artery का घुसना impossible है, because it's quite thick. Similarly, veins का भी impossible. Vein तो ऐसे में भी organ के अंदर नहीं enter करेगा. It's going to carry the blood out of the organ. So अगर इस आर्टरी को ऑर्गन के सेल्स में रीच करना है और विद इन द सेल जो स्पेस है वहां तक रीच करना है, इट हैज टू ब्रांच इनटू वेरी फाइनर स्ट्रक्चर्स. दीज फाइन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैपिलरीज. और ये कैपिलरीज करते क्या हैं? दे आर कैरिंग ब्लड. सो इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसे डिलीवर कर दिया जाता है सेल्स को, और सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ले लिया जाता है विद इन द ब्लड इन द कैपिलरीज. इसके अलावा दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स टू द सेल एंड दे ऑल्सो टेक आउट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द सेल. अब ये सारा काम करने के बाद द ब्लड देन गोज आउट थ्रू वेन्स. सो मैं ये कह सकती हूँ दैट द आर्टरीज
they basically branch into capillaries and these capillaries again unite to form veins. This is how the three blood vessels are connected. Basically ये अलग कुछ नहीं है, they are one structure, the only difference is in their diameter and how fine they branch. So ये रहे तीन blood vessels, arteries, veins and capillaries. Let us understand platelets. देखो platelets they are basically cellular elements. जैसे हमने RBC पढ़ा था, WBC पढ़ा था, वैसे ही प्लेटलेट्स हैं, बट इनका फंक्शन थोड़ा स्पेसिफिक है. दे बेसिकली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. क्लॉट का मतलब क्या है? इमेजिन अ कंडीशन जहां एक पाइपलाइन, दैट मींस एनी ब्लड वेसल, उससे ब्लड फ्लो कर रहा है. व्हाट विल हैपन अगर उस ब्लड के पाइपलाइन में लीकेज हो? सो देयर कैन बी एक्सपेक्ट दैट ब्लड विल स्टार्ट टू फ्लो आउट ऑफ दिस. तो ऐसे कंडीशन पे अगर हमारे हाथ में एक वुंड है, देन थ्रू दैट वुंड द ब्लड शुड फ्लो आउट कंटिन्यूअसली, बिकॉज ब्लड फ्लो को आप रोकेंगे कैसे? टू अवॉइड दिस कंडीशन ब्लड के पास है ये प्लेटलेट्स. दीज प्लेटलेट्स द मोमेंट दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लीकेज और देयर इज अ हिंड्रेंस इन देयर flow of blood, then they produce certain chemicals. और ये chemical क्या करते हैं? They help in the formation of structures which are called clots. ये ऐसे network जैसे structures होते हैं. And in these network, the blood cells are trapped. That means the RBCs and the WBCs are trapped. और इसके आगे और ब्लड फ्लो नहीं कर पाता. सो क्लॉटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके हेल्प से ब्लड दो चीज करता है. नंबर वन, इट एक्चुअली स्टॉप्स लॉस ऑफ ब्लड किसी भी वुंड से, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स जर्म्स. कोई भी जर्म हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता थ्रू ओपन वुंड्स, बिकॉज जब भी कोई ओपन वुंड होगा वहां पे क्लॉट्स बन जाते हैं. नो ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल? सी इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस, बट आई कैन जस्ट टेल यू दैट जब ये प्लेटलेट्स ये समझ जाते हैं कि दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और दे as an atmospheric oxygen or they are getting any hindrance, तब वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोकाइनेज. और ये केमिकल स्टार्ट करता है सर्टेन इवेंट्स इन द ब्लड, एंड इस इवेंट के दौरान देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड. ये प्रोटीन ना ऐसे में विद इन द ब्लड सोल्यूबल फॉर्म में रहते हैं, बट द मोमेंट ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोड्यूस होता है ये इनसोल्यूबल बन जाते हैं और ऐसा एक नेटवर्क बना लेते हैं. सो दैट इज हाउ क्लॉटिंग हैपेंस. ओके, एंड नाउ यू नो दैट why is it important to us. इसके ठीक बाद हमें जो पढ़ना है which is lymph. याद रखना lymph का और एक नाम भी है, it is also known as tissue fluid. जरा समझते हैं ये टिश्यू फ्लूइड क्या है. इमेजिन एनी ऑर्गन, ओके, से स्टमक और एनी ऑर्गन, इसके जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बाहर जो स्पेस होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस कहते हैं. So if here is a cell, 1, 2, 3, these are the cells, then the space right here will be known as the extracellular space. Now ये space बहुत important है, because जब इस space के ऊपर से blood vessels, as in the blood capillaries run करते हैं, carrying the blood, some of the proteins and some plasma and some cellular elements, not RBC, not platelets, but mainly WBC. तो WBC मैंने बोला, मैंने प्रोटीन्स बोला, प्लस मैंने बोला प्लाज्मा. दे ooze out from these blood vessels and कहाँ जाके सेटल हो जाते हैं? between this extracellular fluid, जिसमें these cells are basically bathing. ऐसा लगता है जैसे वो फ्लोट कर रहे हैं उस extracellular fluid में. Now ऐसा क्यों होता है? It is because अगर किसी भी सेल के बीच कोई जर्म है तो उसे किल करने के लिए WBCs रहते हैं. They go there and they kill. Apart from this, अगर इन सेल्स को अमाइनो एसिड्स की जरूरत है या कोई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, then they are also obtained from this extracellular fluid. So this extracellular fluid अगर यहाँ पे ये कलेक्ट होता ही रहा, then तो swelling हो जाएगी. So this extracellular fluid is then drained out through some blood vessels. Okay, I'm sorry, it is drained out through some vessels. उन vessels को कहा जाता है lymphatic vessel, because ये हमेशा इन्हें drain करते रहते हैं और फिर नया fresh फ्लूइड बनता रहता है. इट्स अ सर्कुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस. लेकिन इस फ्लूइड को जब ये वेसल्स के थ्रू फ्लो करने लगते हैं उसे हम कहते हैं लिम्फ. सो द लिम्फ इज दैट टिश्यू फ्लूइड व्हिच इज ड्रेन्ड आउट थ्रू लिम्फैटिक वेसल्स. लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिम्फ का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज टू एब्जॉर्ब क्या? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल फ्रॉम, ये मैंने पहले भी बताया है, स्मॉल इंटेस्टाइन. हम
एंड लिम्फ का सेकंड फंक्शन है ड्रेनेज ऑफ द टिश्यू फ्लूइड. दैट मींस जो भी टिश्यू फ्लूइड यहाँ गेट्स कलेक्टेड दैट इज ड्रेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ. सो विद दिस आज के इस क्लास में वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज ब्लड प्रेशर. हमें पता चला डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स, लिम्फ. सो वी फिनिश द क्लास विद दिस. आई एम गोइंग टू मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट class. Keep revising. If you like my teaching, subscribe and share it with your friends. Thank you.